मुल्क में मुसलसल बढ़ रहे कोरोना के असरात के मद्देनजर ज्यादातर रियासतों ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने की वकालत की है। तेलंगाना के बाद कर्नाटक सीएम ने भी इसकी मुद्दत बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने भी हालात का जायजा लिया तो उधर केरल में गरीब मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचाने की गरज से ट्रैवल ऐप की भी शुरुआत की गई है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस ने डॉक्टरों की एक टीम की तश्कील की है, जहां पर किसी भी वक्त दूसरे मर्ज से मुतासिर लोग इससे मदद ले सकते हैं। इस दौरान हर वक्त 20 डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई है और इस हिदायत के मद्देनजर 2 महीने का राशन तकसीम किया जा रहा है। इसके साथ ही सफाई मुलाजिमों को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही कुछ जरूरी सामान भी लगातार दिए जा रहे हैं। So I welcome this statement. It was an appeal made by all party in the meeting, and Honorable Chief Minister has responded in the all party meeting that some of them are playing politics using this social media and trying to social boycott in a few villages where minorities are there. Not only minorities, various other sections of the society also. So I have been requesting now the Chief Minister, what he has spoken, it should be in the right spirit. It should go to the down level with the villages, the police station. You have to issue a direction through a circular that stringent action will be taken against those type of culprit. And we have also appealed to all our partymen to inform us immediately, so that we will also act on that issue and give protection to them. This helpline will be exclusively run by doctors, and this helpline will be assisted by IVR facility. At a time, 20 people can call and 20 doctors at a time can give suggestion to the citizens, the people who are affected. So this is 24/7 service to the people. 70 to 75 doctors have come forward, and many doctors are willing to join this. And I think this will be a model. The number is 08047188000. This will become a model not only to Karnataka but to the even all India level also. I hope the people of this state will take advantage of this, and then definitely they'll be benefited. कोरोना हटाओ, देश बचाओ के निनाद पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, के चंद्रशेखर राव हो, आज सफाई कर्मचारी सुबह में 5 बजे रात को आके काम करते हैं, अपना गलीज उठाते हैं। उनको हेल्प करने के वास्ते उन्होंने 750 रुपीस बढ़ा दिया। गांव में इस वालों को 500 होते, तो हम भी हमारा ड्यूटी है एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड 2 लीटर बीटा तेल और 1 किलो कहीं की चने के तुअर की दाल दिए। मैं चाहता हूं सभी लोग ऐसे ही काम करेंगे तो देश में कोरोना भाग जाएगा। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एक दिन गांधी हॉस्पिटल भी जाना चाहिए ताकि लोगों को एक विश्वास हो जाता। तो इस वजह से मेरी गुजारिश है, बराबर हर आदमी, राहुल गांधी भी बोले काम करो, पॉलिटिक्स छोड़ दो, 4 दिन गरीबों को हेल्प करो। अपन हर मरता जाते, तिरुपति जाते, यादगिरी जाते, वहाँ गले में पैसे डालते ना, वैसे ही गले में डाला बोल के गरीबों को हेल्प करे। तो Actually, Corona score update, how we have asked about the cricket match score update, like that it will be the indicator. And this COVID is a novel corona and it's an international disaster. And everyone is speaking about Second World War. Even if we are facing Third World War. If it is Third World War came, what kind of disaster we are facing? Ultimately, international shutdown and isolation is the only solution for the corona. So how the technology and scientific everything is updated, but now we are still facing in to research in the corona
vaccine, it's take minimum another 60 to 70 days, like that the report is coming up. So if another 60 to 70 days, if same shutdown activities is retained, means we have to think about the poor family, day-to-day crisis, middle class family, how they can able to survive. So this kind of thing surely the government will ensure. The government gives some kind of relaxation in EMI and some things. So what are the practical problem also we have to day-to-day crisis. From Kalburgi Mahanagar Palike, we have started this disinfection tunnel. It would be used by our Safai Karmacharis. We are using 0.01% of hypochlorite solution in that. And one 8 HP generator has been used for controlled mist formation. Once a person gets in around 3 to 5 seconds, the disinfection takes place. And it is important in present condition where our Safai Karmacharis work in the dangerous conditions, and hence disinfection is important for their health and their family's health as well. At the same time, today we have done distribution of safety gears for our Safai Karmacharis. We have given them gumboots, gloves and masks. Mask distribution goes on every week, whereas new boots and gloves has been distributed today, and these are durable products to make sure that their health and physically they are nowhere harmed during the cleaning process. अभी फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट में 2 महीने का रेशन दे दिया अभी अप्रैल और मई का. ये कोरोना के वास्ते 2 महीने के एक ही बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम. स्टेट का डायरेक्शन है वो, स्टेट हेल्थ एंड सिविल डिपार्टमेंट से. अभी एक आदमी को 5 किलो बोले तो 5 लोग रहे तो 25 किलो चावल और 25 किलो 2 महीने का बोले तो 50 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ. एक कार्ड को 2 किलो 1 महीने को, और बोले तो 4 किलो गेहूँ 2 महीने का 4 किलो गेहूँ 50 किलो चावल बोले तो 5 आदमी का हिसाब बोल रहा हूँ मैं. ऐसे ही एक का 2 का 6 का ऐसा एक आदमी को 5 किलो 1 महीने पर यूनिट 5 किलो बोले तो 2 महीने का 10 एक ही बार दे रहे. अभी हम अभी सब OTP में ले रहे. अभी मोबाइल लेकर आया रहता, उनका लिंक रहता, आधार का लिंक रहते, उनका कार्ड नंबर डाल को उनके नाम डाले तो वो OTP आ जाते. OTP बोल ले तो वो सक्सेस हो जाए. अपलोड होने में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से लॉकडाउन ऐलान के बाद जहां लोग घरों में कैद हो गए हैं, एक तरफ जहां हालात से परेशान लोग कोरोना को शिकस्त देने में लगे मुलाजिमों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी हौसला अफजाई के लिए तरह तरह के अहकामात को भी अंजाम दे रहे हैं. एक रिपोर्ट देखिए. कोरोना वायरस के हालात में सफाई मुलाजिमों के हौसले की तारीफ में क्लैपिंग का ये नजारा है आंध्र प्रदेश के चित्तूर का, जहां रोजाना की तरह मुस्लिम इलाके में पहुंचे 2 सफाई मुलाजिमों का मकामी शहरियों ने हौसला बढ़ाया. अपने बेटे के साथ पहुंचे शख्स ने दोनों मुलाजिमों को जहां पैसे का हार पहनाया, तो वहीं उन्हें शॉल और दीगर जरूरी सामान का तोहफा दिया. मुल्क के कई शहरों में सफाई मुलाजिम, डॉक्टर्स और पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों के लिए ये तस्वीरें नसीहत देने वाली हैं. सफाई मुलाजिमों की हौसला अफजाई के दौरान आसपास के लोग अपने घरों से ही इनका क्लैपिंग कर हौसला अफजाई करते नजर आए. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और आखिर में मुलाजिमों से हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करते नजर आए. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बीच केरल के एर्नाकुलम में वॉक इन सैंपल कलेक्शन बूथ की शुरुआत की गई है. अस्पतालों में बढ़ रही भीड़ को कम करने की गरज से इन्हीं बूथों के जरिए मुश्तबा मरीजों के सैंपल इकट्ठा किए जा सकेंगे. गले का सैंपल लेते वक्त बूथों में हेल्थ वर्कर भी मौजूद रहेंगे. एक रिपोर्ट देखिए. सरकारी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टरों की सलाह पर देसी शक्ल में बनाए गए कियोस्क बूथ काफी कारगर साबित हो रहे हैं.
अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को कम करने की गरज से बनाए गए इन बूथों पर जाकर लोग आसानी से अपनी जांच करा सकते हैं। जिला इंतजामिया का दावा है कि ये जनूबी कोरिया में इस्तेमाल किए जा रहे कियोस्क की तर्ज पर बनाया गया है। So mainly നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മാസ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So in a way we'll be saving on PPE kits ಮತ್ತೆ maximum ടെസ്റ്റ് കുറവ് സമയം ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൽമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ യൂസ് ചെയ്യും. മെയിൻലി ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ഡൗൺ ആർ കോസ്റ്റ്. ಮತ್ತೆ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. ഇതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് RT-PCR as well as rapid test and PCR test. कम लागत से तैयार हुई इस किट से वन टाइम यूज किट से पैदा होने वाले कचरे को भी कम किया जा सकता है। इस तर्ज पर स्वैब यानी गले का सैंपल लेने में महज 1 या 2 मिनट लगते हैं। हालांकि इसके अमल के लिए 7 स्टेप बनाए गए हैं, जहां पहला स्टेप हेल्थ वर्कर के दाखिले से शुरू होता है। अगले स्टेप में हेल्थ वर्कर मास्क पहनने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करता है, फिर दस्ताने पहनकर अगले स्टेप में दाखिल हो जाता है। इस दौरान बाहर खड़े मरीजों का बूथ के पास आने का सिलसिला शुरू होता है और बाकी लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। चौथे और 5वें स्टेप में बारी मुश्तबा तौर पर मुतासिर मरीजों का अमल शुरू होगा, जहां वे अपने मास्क उतारकर हेल्थ वर्कर की जांच में मदद करेंगे। सारी तैयारियों के बाद हेल्थ वर्कर सस्पेक्टेड मरीजों के गले की जांच शुरू करते हैं। इस दौरान दोनों के चेहरे के हालात बदलते रहते हैं। और आखिर में नंबर आता है जांच की रिपोर्ट का, जो महज 2 मिनट में मरीज के सामने आ जाती है। कोरोना वायरस की जांच को लेकर अस्पतालों में बढ़ते मुश्तबा मरीजों की भीड़ कम करने के लिए ये बूथ काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इस तजुर्बे पर अगर सेंट्रल मेडिकल टीम की मुहर लग जाए तो मौजूदा हालात में मुल्कगीर सेहत पर काफी राहत देने वाला यह कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस से हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में अब तक कोरोना से 117 अमवात हो चुकी है, जबकि 8 लोगों की गुज़िश्ता 24 घंटे में मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,400 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र रियासत कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना से 114 अमवात हो चुकी है और महाराष्ट्र में 891 लोग कोरोना की जद में हैं, जबकि 52 लोगों की हलाकत हो चुकी है। तमिलनाडु में अब तक 621 लोग कोरोना की जद में हैं, जबकि 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के 47% मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों के हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस बीमारी से 73,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी है। कोरोना से जंग में जी ग्रुप की जानिब से पीएम केयर्स फंड में किए गए ताउन पर पीएम मोदी ने जी ग्रुप का शुक्रिया अदा किया है। पीएम ने लिखा है कि जी ग्रुप की जानिब से किए गए ताउन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। हम आपको बता दें कि जी ग्रुप के 3500 से ज्यादा मुलाजमीन ने पीएम केयर्स में ताउन किया है और इतना ही नहीं, ग्रुप ने 5000 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को भी माली मदद दी है। जी ग्रुप ने अपने नाजरीन से भी अपील की है कि वो न सिर्फ कोरोना से जंग में हिस्सेदार बने, बल्कि पीएम केयर्स फंड में भी ताउन करें। कोरोना वायरस की जंग में हैदराबाद का निजामिया तिब्बी मेडिकल कॉलेज काफी अहम रोल अदा कर रहा है, जिसे देखते हुए जिला मेडिकल अफसर ने भी इस अस्पताल को लेवल 1 में रखा है।
इस दौरान तलबा के हॉस्टल को मरीजों के बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं महकमा रेल की मदद से ट्रेन की 35 बोगियों को आइसोलेशन के तौर पर इस्तेमाल करने को तैयार किया गया है। हालांकि इसका हदफ 60 बोगियों तक रखा गया है, जिस पर काम जारी है। इसके लिए हिफाजत के भी इंतजाम किए गए हैं, जहां पर पुलिस एहलकार शिफ्ट वाइज अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। निजामी तिब्बी कॉलेज और निजामी जनरल हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एजुकेशन की तरफ से सेलेक्ट किया गया है कोविड-19 के लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पर। ये कोविड-19 कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के केसेस के लिए है। चारमीनार के दामन में जो 180 बेडेड हॉस्पिटल है निजामी जनरल हॉस्पिटल, और यहाँ के तिब्बी कॉलेज की क्लासेस को भी वार्ड के तौर पर कन्वर्ट किया गया है, और यहाँ पर कोविड-19 के प्रिलिमिनरी मानी पहली स्टेज के जो केसेस रहेंगे उसका टेस्ट किया जाएगा, और ऐसे केसेस जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको हायर सेंटर को भी जाया जाएगा। और बास केसेस जो हैं ऐसे जो एक्सपोजर वाले हैं, जैसे कोई बाहर की कंट्री से हिंदुस्तान आया है या ऐसा आदमी ऐसा शख्स जो कि हिंदुस्तान में उस आदमी के साथ कुछ शख्स के साथ है जो कि बाहर की कंट्री से आया है, और किसी को खांसी बुखार सर्दी जुकाम है और सांस लेने में तंगी हो रही है या न्यूमोनिया के सिम्टम्स हैं, तो ये ऐसे सारे केसेस को यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ निजामी तिब्बी कॉलेज निजामी जनरल हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ सारी सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं, और ऐसे तमाम केसेस को जो कि अतराफ अकनाफ में है पुराने शहर के अंदर एक्सपोजर के केसेस रहेंगे, तो उन तमाम लोगों को यहाँ पर एडमिट करने की सारी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर हैदराबाद कोचिंग डिपो 60 coaches are given target, sir. Out of 60 coaches, we have completed 35 coaches till now. 35 coaches कंप्लीट करें सर। इसमें कोविड पेशेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ बताया मैं अंदर दिखाता हूँ सर। उसके आउट ऑफ 4 टॉयलेट से एक टॉयलेट को वॉशरूम बनाया, उसमें स्नान करने के लिए प्रोविज़न लगाया सर। और इसका एक कूपे को मेडिकल फैसिलिटीज़ लगाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए, सिरिंज बॉटल्स लगाने के इक्विपमेंट लगाने के लिए ब्रैकेट्स, बॉटल होल्डर्स, कोटुक्स वो प्रोवाइड करें सर। और उसके मच्छर अंदर न आने के लिए उसका मस्कीटो नेट लगा रहे सर। और एक ये फर्स्ट कैबिन को वो प्लास्टिक कर्टन लगा रहे सर, वो सेपरेट बाकी कैबिन से सेपरेट करने के लिए वो हर एक कोच में वो प्रोविजन लगाए सर। अभी इधर नामपल्ली स्टेशन में अभी 35 कोचेस ये इंजीनियर वाले रेडी किया है, तो अभी जैसा वो लोगों को ऑर्डर 60 बोल रहे पूरा रेडी करके रख रहे, आइसोलेशन के लिए ये सभी रेडी रख रहे हैं। इसमें जो अरेंजमेंट कर दो क्या-क्या चीज़ें फैसिलिटी के लिए पब्लिक के लिए क्या-क्या रखने वाले हैं? वही जो जिसको क्वारंटाइन करना है, आइसोलेशन में रखना है, उनके लिए ये कोचेस का रेडी कर रहे। वो पूरा कोचेस को हम इधर सिक्योरिटी दे रहे हैं, पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनका काम करने वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। स्टेशन में भी ट्रेन्स पूरा बंद है, पूरा एम्प्टी कोचेस रेक्स उधर रखा है, सब कोचेस को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए अभी शिफ्ट वाइज हमारा एक शिफ्ट में 8 आदमी रहता है, हर एक शिफ्ट में राउंड द क्लॉक हमारा प्रोटेक्शन करते रहते हैं। तो कोरोना का कहर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हुकूमत के सामने नए से नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, और इन्हीं में से एक है हजारों लोगों को आइसोलेट रखना, यानी कि दुनिया से अलग रखना। लेकिन अब इसमें हुकूमत को साथ मिला है रेलवे का। रेलवे ने अपनी ट्रेनों को ही आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करना शुरू कर दिया है, यानी अगर वबा बढ़ती है तो रेलवे इसके लिए पहले से ही तैयार है। कृपया ध्यान दीजिए, हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। हिंदुस्तानी रेलवे आजकल जिंदगी बचाने की दुआ ही नहीं कर रहा, बल्कि जोर शोर से तैयारी भी कर रहा है। आप भले ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग में लॉकडाउन पर अमल कर इस जंग में साथ दे रहे हैं, लेकिन रेलवे के फौजी अपने लेवल पर मुल्क की आवाम को मुश्किल हालात से बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए रेलवे के अलग अलग रेल डिपो में कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का काम चल रहा है, ताकि अगर मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो अस्पताल में बेड खाली ना होने पर ट्रेन में बने इस आइसोलेशन सेंटर में भी कोरोना मरीजों को रखा जा सके। ये तस्वीर है इंदौर की, जहां रेलवे के स्टाफ कोच को मेडिकल सहूलियात से लैस करने का काम कर रहे हैं। अब तक 10 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का काम पूरा हो चुका है।
मध्य प्रदेश के इंदौर और मऊ में 80 कोच को इसी तरह आरजी अस्पताल बनाया जाएगा। एक केबिन में दोनों लोअर बर्थ को बेड में बदल दिया गया है। सभी जरूरी चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि कोई कमी ना रह जाए। रेलवे के स्टाफ इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि अगर मरीज कोच में बने मेडिकल वार्ड में आए तो उन्हें मच्छरों से परेशानी ना हो। इसके लिए डिब्बे की खिड़कियां हवादार जालियों से ढकी जा रही हैं। टॉयलेट में नहाने का भी इंतजाम किया गया है। देखिएगा, कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में एक महामारी के रूप में फैला है और भारतवर्ष में भी इसका काफ़ी प्रकोप रहा है और दिनों दिन केस बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर पूरा देश एक सूत्र में काम कर रहा है और उसी के लिए हमारे माननीय रेल मंत्री द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग अपने जो कोचों को भी आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है तो उनके लिए रखने के लिए हम लोग अपने आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं। और जो कोचेज़ हैं, स्लीपर क्लास है और जनरल क्लास के जो कोचेज़ हैं, उनको हम लोग आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके तहत पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने ये करीब यहाँ कोचिंग डिपो है इंदौर में और डॉक्टर अंबेडकर नगर, कुल मिला के 80 कोच का प्लानिंग किया हुआ है। 50 हम लोग इंदौर में बना रहे हैं और 30 हम डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में बना रहे हैं। इस कोच के अंदर जो आइसोलेशन की जो सुविधा है, जो वार्ड में जो सुविधा होती है, सब उसके अंदर रहेगी। उसमें एक केबिन के अंदर 2 बेड लगाए गए हैं और वो डिसाइड करेंगे डॉक्टर कि उस पर एक बंदे को रखना है या 2 को रखना है, तो उसके हिसाब से। और हर उसमें पर्दे लगाए गए हैं प्लास्टिक के, जिससे कि आइसोलेशन पूरा परफेक्ट रहे। अब आपको बताते हैं कि मिशन जीवन के लिए रेलवे की पूरी तैयारी आखिर क्या है। 3.2 लाख आइसोलेशन और क्वारंटाइन बेड्स बनाने का हदफ। जरूरत पड़ने पर 20,000 कोच आइसोलेशन में बदले जाएंगे। पहले मरहले में 5,000 कोच आइसोलेशन वार्ड में तब्दील होंगे। अब तक 2500 कोच आइसोलेशन वार्ड में बदले जा चुके हैं। रेलवे कोच में 40,000 आइसोलेशन बेड्स बनकर तैयार हैं। रेलवे ने जंगी सतह पर काम कर 40,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार कर लिए हैं। ये आइसोलेशन बेड्स मेडिकल इक्विपमेंट से लैस हैं। मतलब जो हिंदुस्तानी रेलवे पहले अपने गुजरा को महफूज मंजिल तक पहुंचाने का काम किया करती थी, वो अब कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम में लगी है, ताकि कोरोना हारे और ट्रेनों के साथ ही फिर से सब कुछ पहले की तरह पटरी पर लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।